मैं शशि जैन, आज के इस कार्यक्रम की संचालिका। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय ऋत्विक चक्रवर्ती जी, हमारे सभी आदरणीय गुरुजन, विशिष्ट अतिथि और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की शाम बहुत ही खास शाम है। यकीन मानिए, खास आपके ही नाम है। आज के इस कार्यक्रम का नाम अपने आप में खास है, परस्परम भावयन्तः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11। देवान भावयतानेन ते देव भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमा वाप्स्यतः। अर्थात यज्ञ के द्वारा प्रश्न होकर देवता भी प्रश्न करेंगे। इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य संयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। प्रत्येक संस्कृति की एक विशेषता होती है कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम अपने इष्ट को याद करते हैं। इस क्रम में मैं हंसराज कश्यप की माता श्रीमती जुनुमोनी हालोई जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो मंगलाचरण से शुरुआत करें। श्रीमती जुनुमोनी हालोई। भद्रं श्रीरामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं शस्त्रनुभिः वसेमदेवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत ही ऊर्जामयी प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए, हमारी रूह, हमारी आत्मा को कोई क्रिया जब लुभाती है तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और यह स्थिति किसी ध्यान से कम नहीं होती। ध्यान जहां हम स्वयं को भूल जाएं, खो जाएं। निसंदेह संगीत के माध्यम से भी ईश्वर के निकट जाया जा सकता है। तो आइए आज हम इन सुरों के संसार में खोकर, मंत्रमुग्ध होकर स्वयं को भूलें और एक आनंद यात्रा आरंभ करें। और इसी क्रम में जिज्ञासा टी कश्यप की माता श्रीमती सविता बर्मन से अनुरोध करना चाहूंगी कि असम की प्रसिद्ध लोकगीत प्रस्तुत करें। श्रीमती सविता बर्मन।
एक आनंद यात्रा, एक मंत्र मुक्त प्रस्तुति। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इमोन कल्याण की माता श्रीमती रचिता नायक, जो खुद भी एक शिक्षक हैं, उन्हें राधा दीदी का परिचय देने के लिए और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करने के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी। श्रीमती रचिता नायक। নমস্কাৰ। নলবাৰীত অৱস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ পৰস্পৰম ভাৱয়ন্ত শীৰ্ষক অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ মাজত সজাগতা ৱেব সন্মিলনত উপস্থিত সংযুক্ত থকা শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয়া কুমাৰী বি ৰাধা দিদি ডাঙৰীয়ানী, জীৱনব্ৰতী কাৰ্যকৰ্তা বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ কন্যাকুমাৰী, মই ৰচিতা নায়ক কৰজোৰে স্বাগতম জনাই। সংযুক্ত ডক্টৰ শোভাৰাণী শৰ্মা বাইদেউ, সম্পাদিকা বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ শিক্ষা প্ৰচাৰ ভাৰতী গুৱাহাটী, তেখেতকো মই স্বাগতম জনাইছো। শ্ৰীযুত কমলাকান্ত বলিয়াৰ সিং, একাডেমিক কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু ৰিজনাল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ VKSPV, তেখেতকো মই এই সভাখনলৈ স্বাগতম জনাইছো। সংযুক্ত বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকল, বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, সন্মানীয় অভিভাৱক আৰু অভিভাৱিকাসকল, আৰু আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে ত্ৰিভেন্দ্ৰমৰ পৰা জীৱনব্ৰতী কাৰ্যকৰ্তা কল্যাণী দেৱী দিদি, তেখেতকো আমি স্বাগতম জনাইছো এই অনুষ্ঠানলৈ। নলবাৰী VKB বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে স্বামী বিবেকানন্দৰ আদৰ্শত এক মহান মানৱ জাতি গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থত মানৱতাৰ হকে কাম কৰি আহিছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক মূল্যবোধৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰে শিক্ষাৰ বিশাল ক্ষেত্ৰখন প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। পৰস্পৰম ভাৱয়ন্ত শীৰ্ষক সভাখনত আমাৰ লগত ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব, আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সকলোৰে পূজ্য সন্মানীয়া কুমাৰী ৰাধা দিদি। তেখেত এগৰাকী জীৱনব্ৰতী কাৰ্যকৰ্তা বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ কন্যাকুমাৰী। তেখেত আছিল যুটীয়া সম্পাদক বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ। বৰ্তমান তেখেত বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত, তাৰ অৰ্থত আন্দামান, কৰ্ণাটক, কেৰেলা, তামিলনাডুৰ দায়িত্বত আছে। আমি সকলোৱে সৰুৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সাধুকথা, বিভিন্ন ধৰণৰ সাধুকথাবোৰ আমি শুনি আহিছো। সাধুৰ মাধ্যমেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমাৰ লগত আমাৰ ডাঙৰ বিলাকৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাধুৰ মাধ্যমেৰে আমি কথাবিলাক শিকিছো। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাধু কথাৰ কিতাপ পঢ়িছো, যেনে আপোনালোকে জানে বুঢ়ী আইৰ সাধু, ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰসিক
সাধুবোৰ তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি শিকি আহিছো আৰু এই যে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব আমাৰ সন্মানীয়া দিদি ইতিমধ্যে নলবাৰী বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত এবাৰ আহি গৈছে বুলি মই শুনিলো নিশ্চয় তেখেত নলবাৰীৰ মানুহৰ আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকা বিলাকৰ নলবাৰীত থকা ভাৱবিলাকৰ লগত নিশ্চয় চিনাকি হৈছে আৰু তেখেতে আমাৰ লগত নিশ্চয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান নিশ্চয় হ'ব আৰু আমি নিশ্চয় উপকৃত হ'ম তেখেতৰ ভাৱ আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে তেখেতে খুব ধুনীয়াকে সাধুৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কথাবোৰ আমাক ক'ব আৰু আমি এই চেগতে আৰু তেখেতে খুব ধুনীয়াকে সাধুৰ জৰিয়তে আমাক শিকাব আৰু তেখেত খুব ধুনীয়াকে সাধুৰ মাধ্যমেৰে আমাক মোটিভেট কৰিব পাৰে অকল এইখিনিয়ে নহয় তেখেত আৰু বিভিন্ন কথাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল যেনে তেখেতে আছিল মেম্বাৰ অফ ষ্টেট ওমেন কমিশ্যন এইটো আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ফ্ৰম 2005 to 2016 তাৰপিছত মোটিভেটিং দ্য য়ংগাৰ ওৱানছ থ্ৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰিজ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট ষ্টৰিজ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্যৰ মাধ্যমেৰে তেখেতে আগতেও বিভিন্ন ধৰণৰ অসমত তেখেতে বিভিন্ন ধৰণে মানুহক যেনে মই যিখিনি পালো এইখিনি হ'ল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য দিছে গুৱাহাটী IIT-তো দিছে গতিকে আমি এতিয়া তেখেতৰ কথাখিনি আহক আপোনালোকে চবে আমি খুব সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ কথাখিনি আমি উপভোগ কৰো তেখেতৰ কথাখিনি আমি শুনো আৰু এইখিনি কৈ মই শ্ৰীযুতা কুমাৰী ৰাধা দিদিক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আকৌ কৰজোৰে স্বাগতম জনাইছো আৰু মই শশী দিদিলৈকে ওভৰ কৰিছো थैंक यू रचिता मैम थैंक यू सो मच बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब कुछ कहा राधा दीदी को आमंत्रित करने से पहले मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि प्लीज अपने अपने कैमरे ऑन रखें अगर आपके नेट में कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज अपने कैमरे ऑन करें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा सभी से बात करने में अब मैं राधा दीदी हमारी मुख्य वक्ता से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि वो हमें अपनी वाणी से अनुग्रहित करें थैंक यू सो मच गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सभी को नमस्कार विवेकानंद केंद्र विद्यालय नलबाड़ी के सारे हमारे भाई बहनों और वहाँ के जितने सारे माता पिता जो आज हमारे साथ जुड़े हैं सबको मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से प्रणाम करती हूँ आप सबका जीवन सुखमय हो यही प्रार्थना है कि देश के इस कोने में बैठकर देश के उस कोने में जुड़ना इस सायं संध्या में ये बहुत ही सुंदर बात है और बहुत दिन के बाद में अखोमिया सुनने को मिलना ही बहुत खुशी लग रहा था मैं सुनकर खुशी से बैठ रही थी बहुत जल्दी आई थी तो असमीस में बातचीत चल रहे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि जिसके साथ में बहुत साल बीती हूँ तो फिर से सुनना और मिलना भी बहुत अच्छी बात है तो सारे के सारे माता पिताओं को और गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और आज बहुत सुंदर सा एक टाइटल दिया हुआ है परस्परम भावयन्तः अभी जीवन में सबसे हमें जरूरत चीज है परस्परम भावयन्तः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा। यानी हम देवताओं को पूजा करना है, यज्ञ करना है, उससे उनका प्रीति होंगे, उनका जो खुशी होंगे। और परस्परम भावयन्तः जिसको कहा है कि हम भगवान और हमारे बीच में इस तरह का तालमेल हो, इस तरह का अपनापन हो कि एक दूसरे को पोषण करे और नरिश करे, और जिसके द्वारा एक दूसरे का शक्ति हमें मिले, और जिसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ में बहुत तगड़ा से अच्छे से संबंध से जी सकेंगे। तो परस्परम भावयन्तः ये जो टाइटल ही बहुत हमारे लिए बहुत बढ़िया टाइटल है, जहाँ हम लोग माँ पिता गुरुजन एक साथ बैठे हुए हैं कि हमारा उद्देश्य आज का जो हम एक साथ आए, इसका उद्देश्य ही क्या है कि हम अगर हमारे बच्चों को आने वाले दिन में उनको अच्छे से पालन पोषण करना है, या उनको अच्छा बच्चा बनाकर हमारे देश में हमको देना है, या हमारे परिवार में बच्चे अच्छा होना चाहिए, हमारा परिवार अच्छा रहना चाहिए, ये सब चीज के लिए हमें क्या जरूरत है? ये तालमेल का जरूरत है, आपस की का संबंध अच्छा होना बहुत जरूरत है। तो इस मामले में ये जो परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को संवर्धन करते हुए, सपोर्ट करते हुए कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब हम एजुकेशन का मामला ले रहे हैं ना, स्कूल का मामला है, तो यहाँ पे हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट फैकल्टीज इसमें हैं, वो एक है टीचर्स का और एक है पेरेंट्स का। तो ये दोनों मिलने से, ये दोनों का तालमेल अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारा बच्चा आगे बढ़ने का जो मामला है वो बहुत ही सुंदर होगा, अच्छा होगा। तो जब ये अच्छा होना है तो ये तालमेल होना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना होगा। अब हम छोटा बात को अभी इधर देखने जा रहा है, क्या चीज है एकदम सबसे पहले। तो जब अगर एक पेरेंट है, कोई पेरेंट नहीं चाहेंगे हम खराब है कोई टीचर बताए, या कोई टीचर नहीं चाहेंगे टीचर खराब है कोई पेरेंट बताए। अब जब एक दूसरे को समझ आता है या तालमेल बैठता है, तो टीचर का जो समस्या है वो पेरेंट समझने लगता है, पेरेंट का जो समस्या है वो टीचर समझने लगता है। तो ये दोनों जब आपसी का संबंध अच्छा होगा तो इसमें से क्या गुण होगा, उनके बच्चे, यानी जो बच्चा आएगा, बच्चा कभी पेरेंट्स सोचते होंगे कि मेरा बच्चा है, बच्चा तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है, बच्चा तो इस देश का संपत्ति है, सबसे पहले हमने समझना होगा। क्योंकि ये बच्चे जो बड़े होंगे ये माँ पिताजी के लिए ही सिर्फ नहीं, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा नागरिक होना चाहिए। तो वो सही जब होगा तो सब सही हो सकता है। तो ये सारा चीज जो शुरुआत जब होता है वो अपने परिवार से ही होता है। अब हमारे परिवार में तो जो भी कोई आज पेरेंट है, वो पेरेंट सबसे पहले गुरु होता है, क्योंकि माँ पिताजी का हाथ से ही बच्चा बाद में स्कूल जाने लगता है। तो हम सारे का जीवन पीछे मुड़ के देखेगा तो हर एक आदमी का जो आदमी बनाने का जो प्रक्रिया में हम सब लोग कोई ना कोई रूप में लगे हुए हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो गुरुजन हो। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सुंदर से कहते थे कि ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है, जिसमें एक साइड में पेरेंट्स है, एक साइड में टीचर्स है, और इनको कनेक्ट करते हुए बच्चे हैं। तो ये जो समाज है इसके द्वारा जाता है। तो जहां भी आदमी बनाने का बात जब कहा जाता है तो हमारा सबसे पहला जो है वो हमारा परिवार आता है। परिवार का माहौल क्या है, कितना सुंदर माहौल है, जहां पे एक बच्चा भय भीति नहीं होकर कुछ बात करने के लिए उनके अंदर भय नहीं रहता है, उनको डर नहीं लगता है, उनको जो मन का बात है वो अपना माँ पिता से बता सकते हैं, या बच्चों का जब मन में जो चलता है वो माँ पिता समझ सकता है। जब वो वहां से स्कूल में आता है, टीचर्स उनको समझता है, तो उनके समस्या को समझ में आता है, चाहे पेरेंट्स को हो चाहे टीचर्स का हो। ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग जब होगा तो क्या होगा, बच्चा सही व्यक्ति निकलता है। तो हमारा एजुकेशन का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति निर्माण है। सही व्यक्ति का निर्माण हो गया तो हमारा क्या होगा, सही परिवार होगा, सही परिवार होगा तो सही समाज होगा, सही समाज होगा तो सही राष्ट्र होगा, तो सारा समस्या को हल वहां पे ठीक होगा। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे
व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान। हमको सबसे अच्छा चाहिए कि हर एक व्यक्ति का निर्माण होना पड़ेगा। तो व्यक्ति निर्माण हमें अनेक क्या होना चाहिए, व्यक्ति का जीवन का कुछ मूल्य होता है। यानी जैसे एक आदमी है वो पढ़े लिखे हैं ऐसा हम कहते हैं, है ना, बहुत हाईली एजुकेटेड ऐसा कहता है। तो एजुकेटेड यानी क्या होता है, वो क्या समझता है जीवन के बारे में, जीवन का उद्देश्य क्या है, कि क्या करना है जीवन में। तो अभी किसी को भी पूछो व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ, आपको क्या जीवन का उद्देश्य क्या है, तो पूछने से आप कोई भी स्कूल में जाके पूछो या कोई युवा को आज पकड़ के पूछो आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, तो सबसे ज्यादा बताने वाले लोग क्या कहते हैं, आई वांट टू बी, कुछ तो एक प्रोफेशन बोलेगा, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, दिस एंड दैट, बहुत सारे बताएंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जीवन का उद्देश्य क्या समझता है, वो यही समझता है कमाने का कुछ काम होना चाहिए। तो कमाने का काम होने के बाद में जीवन का क्या होगा, वो जीवन का लक्ष्य पूछा जाता है। जीवन का लक्ष्य क्या है, अभी जो कमाने का जो काम है तो हमको कुछ रोज रोटी मिलने के लिए कुछ जॉब ना, वो कुछ भी जॉब हो सकता है, वो जॉब में कमाएगा, खाएगा, सोएगा, पिएगा, एक दिन मर जाएगा। क्या यही हमारा जीवन का लक्ष्य है? तो हमारा जीवन का प्रयोजन क्या है, हम क्यों इस जगत में जन्म लिया है, हमसे कितने लोगों को सुख मिलता है या मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी इस पर्यावरण में देखिए, कोई भी जीवी को देखो, वो किसी को जीवी को भी लेने से कोई भी अपने लिए खुद के लिए जीवन जीता नहीं, वो दूसरों के लिए ही जीता है। पेड़ पौधाओं को देखो कि वो जो भी कुछ प्रोड्यूस करता है वो कौन लेता है, मनुष्य ही लेता है कि नहीं है, कि जो भी जीव जंतु को देखो वो मनुष्य के लिए करता रहता है। तो ये जो देखा जाए तो सबका जो फायदा उठाने वाला जो जीवी है वो मनुष्य ही है। और मनुष्य क्या देता है वापस, सबका नाश करता है, बुद्धि का उपयोग करता है और वो उपयोग से बुद्धि से नाश करता है। तो अगर वो सही काम नहीं करता है तो वो सही व्यक्ति नहीं होता। तो सही व्यक्ति होना है तो उसका सही संस्कार होना पड़ता है। तो अभी सही संस्कार कहाँ से दिया जाता है, वो घर से शुरू होना है। तो घर से शुरू होना है मतलब अपने घर का माहौल ऐसा हो, यानी एक बच्चा जब बढ़ता है तो वो घर का बड़ों का व्यवहार कैसे है। और आंखों में सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा, जब मैं नई नई आसाम में पहुंची तो गाड़ियों में लिखा रहता है ना, अपनार व्यवहार अपनार परिचय, ऐसा लिखा रहता है कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। तो ये जो संस्कार है ना, हम क्या व्यवहार करता है उससे मेरा परिवार का परिचय हो ही जाता है, बताने का जरूरत नहीं है। ये स्वामी विवेकानंद का जीवन में से भी हमको देखने को मिलता है। स्वामी जी जब पाश्चात्य राज्य में गए थे, वहां पे लोग उनके ऊपर में मजाक उड़ाया था ना, ये कैसे आदमी है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे उनके दाढ़ियां सब है, ऐसा करके स्वामी जी को मजाक कर रहे थे। तो स्वामी जी ने उनको अपना परिचय दिया। कैसे परिचय दिया, वो परिचय बहुत ही सुंदर है। स्वामी जी, वो तो इंग्लिश में था, वो लोग बोला है कैसे है बोलने से स्वामी जी बताए, आई बिलोंग टू अ कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स अ मैन, बट आई डाउट आई एम इन अ कंट्री वेयर टेलर मेक्स अ मैन। यानी स्वामी जी ने कहा कि मैं उस देश से आया हूं जिस देश में चरित्र आदमी को बनाता है, और मुझे अभी लग रहा है मैं ऐसा देश में हूं जहां पे दर्जी आदमी को बनाता है। यानी कपड़ा पहन लिया, सूट कूट पहन लिया तो आप बहुत बड़ा महान हो गया, मगर मैं ऐसे देश से नहीं आया हूं जहां पे चरित्र है, जो गुण है, मनुष्य का गुण है। क्योंकि भारत देश ऐसा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, दरिद्र देवो भव, अतिथि देवो भव, सर्वत्र देव को देखने का, भगवान को देखने का जो अगर कोई संस्कार इस जगत में है तो वो भारत में है। इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भारत से आया हूं, देखो भारत का परिचय कैसा दिया कि मैं ऐसे देश से आया हूं जिस देश में चरित्र आदमी को बनाता है, ऐसा उन्होंने आंसर दिया। देखो क्या क्या कैपेसिटी, क्या गर्व होता था उनको कि आज हमारा परिचय वो हमारा गुण होना चाहिए, हमारा चरित्र होना चाहिए। इसके लिए
परिवार में चरित्र होना होगा कि माँ पिता को उस तरह का दर्जा देता है क्या, माँ पिता को हम उस तरह के पूजन अर्चन करता है क्या, हम सारे चीज में भगवान को देखने का हमारा स्वभाव होता है कि नहीं। तो ये जो हमारे घर से होने वाला जो एजुकेशन है, आज हमको ये बहुत जरूरत है। इसीलिए आज जब हम एक साथ इधर में बैठे हैं, वीकेवी नलवाड़ी के पेरेंट्स है, और हमने आज ऋतिक सर को क्यों लगा कि नहीं हमको पेरेंट्स को लाना होगा, है ना, बच्चों को पढ़ा के इंग्लिश पढ़ा के मैथमेटिक्स पढ़ा के छोड़ सकता है ना, कि हमारा ड्यूटी हो गया। एक टीचर क्या है, किताब का नॉलेज है वो देना है, खत्म, ऐसा भी सोच सकता है। नहीं, विवेकानंद केंद्र विद्यालय स्वामी विवेकानंद के नाम पे चलता है, वहां पे मैन मेकिंग होना चाहिए, व्यक्ति का चरित्र निर्माण होना ही चाहिए। तो व्यक्ति का चरित्र निर्माण होना है तो किताब का एबीसीडी पढ़ाने से नहीं होगा, वो तो एक ही होगा, उसको ब्रेड अर्निंग जो पैसा मिलने के लिए काम आएगा। मगर व्यक्ति निर्माण होना है तो माँ पिता का तो इसमें भाग होना पड़ता है, माँ पिता का सपोर्ट होना होता है। क्योंकि जो घर का बैकग्राउंड से बच्चे जब स्कूल में आता है, टीचर्स उसके ऊपर में काम करने लगता है, तो उनका रिसीव करने के लिए उनका पात्र है क्या, उनका जो वेसल उस तरह का बनाया हुआ है क्या कि तभी उनका अंदर में कुछ जा सकते हैं। तो जैसे हमने महाभारत में देखा है ना, महाभारत हमको पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का यानी उसको लाल वाला कपड़ा में बांध के वहां रखने का नहीं है, उसको समझने का है। तो उसमें देखो क्या कहता है कि कुंती देवी का पुत्र थे पांडव, है ना, कुंती देवी पांडु उनका पति मरने के बावजूद हर समय में बच्चों के साथ रहते थे, उनको धर्म का रास्ता बताता था। माँ हरदम मेहनत करते हुए बच्चा जहां भी गया बच्चा के साथ में रहती थी। अब गांधारी को देखो, गांधारी ने क्या किया, गांधारी का तो आंख तो अंधा बचपन से बंद अंधी नहीं थी वो, मगर पति का पतिव्रता पत्नी बनने के लिए अपना आंखों को पट्टी बांध ली वो ना, और 101 बच्चा को पैदा किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। किसके साथ बढ़ता है, क्या करता है, कुछ नहीं मालूम। पिता तो जन्म से अंधा है, कुछ नहीं जानता है, और माँ तो अपने आप को पट्टी बांध लिया, कुछ नहीं जानता। अब बच्चा कैसा बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, किसी को सम्मान करते है कि नहीं करता है, उसका व्यवहार कैसे, कुछ नहीं आता। अब द्रोणाचार्य को देखो, द्रोणाचार्य तो गुरु थे दोनों के लिए, है ना, दोनों को उन्होंने एक ही जैसा सिखाया। अभी देखो गुरुजनों का रोल देखो, गुरुजन कितना भी करने से भी अगर वो माँ पिता का जो सहयोग नहीं है, तो ये महाभारत से हमको सीखने को मिलता है कि कुंती का बच्चा सब धर्म के रास्ते पे चला, तो उनका 5 होते हुए भी उनका जीवन का विक्ट्री हो गया, उनको विजय मिल गया, उनको सक्सेस मिला जीवन में। मगर कौरवों को देखो, वो ना माँ पिता को सम्मान करते थे, ना गुरुजनों को सम्मान करते थे, ना जीवन में खुद को वो समझ सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड ऐसा ही हुआ है। धर्म क्या है मालूम होते हुए भी उस रास्ते पे ना चला, ना माँ ने समय पे उनको, माँ पिता ने समय पे उनको रास्ता दिखाया। गुरु द्रोणाचार्य अच्छा होने से भी क्या फायदा हुआ, कौरव तो नहीं बना, है ना। तो महाभारत जीने का पद्धति सिखाता है। क्यों हम सब महाभारत पढ़ना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, हमने अपना ये संस्कृति को सीखना है। भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाता है हर चीज में भगवान को देखो, और इसको देखते हुए खुद के अंदर के भगवान को आगे बढ़ाओ। तो इसके जो एजुकेशन हमें ये मदद करना चाहिए, हमारे अंदर का भगवान, जो हमारे अंदर का दिव्यत्व, हमारे अंदर का अच्छाई को बाहर लाने का मदद करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको टीचर्स अकेला नहीं सकेगा। कभी भी नहीं सोचो मैंने वीकेवी नलबारी में बच्चा को डाल दिया मेरा काम हो गया, बिल्कुल नहीं। पीछे जाना पड़ेगा, कभी टीचर्स को मिलके पूछना पड़ेगा मेरा बच्चा का व्यवहार क्या है। मैं ना एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि मैं अरुणाचल में बहुत साल थी, और अपने माँ पिताजी लोग आते थे रिपोर्ट लेने के लिए ना, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए, और कभी कभी कोई माँ पिता को बहुत गुस्सा आता था, बच्चा को अच्छा नहीं मार्क मिला। पर कोई माताएं ऐसे आती थी, वो पूछते थे कि दीदी ठीक है मार्क वो थोड़ा सा कम है, पर मेरा बच्चा हॉस्टल में कैसा व्यवहार करता है, सबके साथ में कैसा रहता है वो, अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, सबको मदद करता है, सबका देखभाल करता है, एक दूसरे को परस्परम भावयन्तः है, मिलकर रहता है। ये बात सुनता है तो माँ बोलती है बस मुझे मेरा बच्चे का अच्छा बच्चा बनने से हो गया। देखो
मनुष्य बनने का इच्छा वो माँ के अंदर है। यानी आप बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे, एक बहुत बड़ा उद्योगस्थ को बना दिया, या एक बड़ा एम्प्लॉय को बना दिया, एक बड़ा मैनेजर को बना दिया, क्या फायदा अगर दूसरों को वो मदद करता नहीं है, वो दूसरों को विचार नहीं करता है, सिर्फ खुद के लिए सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति को बनाकर क्या करेंगे? हम स्वार्थमती लोगों को बना के क्या करेंगे? निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकने वालों को क्या करना है? बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं मगर किसी के प्रति उनको प्यार नहीं है। डॉक्टर बनता है और संडे में कोई आता है तो पूछता है संडे को बीमार होता है क्या? ऐसा डॉक्टर, क्या फायदा है ना? इंजीनियर है, घर बना लिया, 4 दिन में छत नीचे आ गया, क्या फायदा? यानी गुडनेस नहीं है, यानी अच्छापन को बढ़ाया नहीं है, सिर्फ वो साक्षर बना है, शिक्षित नहीं बना। हमें शिक्षित लोगों का जरूरत है, साक्षर तो होना ही है, शिक्षित लोगों का जरूरत है आज। और ऐसा अगर होना है तो हमें दोनों को एक साथ आना होगा, माँ पिता और टीचर्स को एक साथ आना होगा, विचार करना होगा, विचार विमर्श करना होगा। और माँ पिता जब बच्चा सही नहीं होता है, टीचर के ऊपर में दोष नहीं डालना है, और टीचर अगर बच्चा सही नहीं होता है, माँ पिता के ऊपर में दोष नहीं डालना है। क्योंकि आज बच्चा का समस्या क्या है, क्यों ये बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है? माँ पिता अच्छा होते हुए भी बच्चा कभी कभी गंदा होता है, क्योंकि उसका दोस्ती किस सर्कल में हमें मालूम नहीं, फाइंड आउट करना होगा। ये टीचर शायद पकड़ सकेगा, कुछ बातें माँ पिता पकड़ सकेंगे। तो ये लोग जब आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, आज हम पीटीए बनाते हैं ना, मैंने पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन है, हर स्कूल को ये पक्का होना ही चाहिए, ये ऐसा नियम है अभी। ये किस लिए है? ये एक दूसरे को दोष पकड़ने के लिए नहीं है, ज्यादातर ये किस लिए उपयोग करते हैं ना, एक दूसरे को दोष पकड़ने के लिए। टीचर ने क्या गलत किया और पेरेंट्स ने क्या गलत किया, और आपस में ये दोष निकालते निकालते अंत में वो कहीं नहीं पहुंचता है। ऐसा स्थिति जब होता है तो हमारा पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन होते हुए भी कोई भी बदलाव बच्चों का जीवन में नहीं आएगा। हमें आज लाना है तो हमें एक दूसरे को परस्परम भावेंदः समझना होगा कि क्या हो रहा है। एक टीचर्स का गुण जो है, माँ पिताजी जब घर में अपने बच्चा के सामने बताना है, और बच्चा जब कभी कभी बच्चे अपना उपयोग करते हैं, क्योंकि वो तो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल माइंडेड होता है और कुछ कुछ बोलते रहता है, तब हमें कहाँ करेक्ट करना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली मैं कुछ एक साल का पहले का बात है, जो ट्रेन में चल रही थी, मैं बैंगलोर से आ रही थी कन्याकुमारी की ओर, और एक बच्चा ट्रेन में बैठकर माँ पिता को अपना टीचर का गलत बोल रहा है, और माँ सुन रही है। 5 मिनट हो गया, मैं भी सुन रही थी क्या होने जा रहा है। और माँ 5 मिनट के बाद में बच्चा को बताया, बेटा तुम इतना बड़ा नहीं हुआ कि एक टीचर को तुम जज कर सकते हो, उतना बड़ा तुम नहीं हुआ अभी। और वो बताई कि मैं आज इतना साल होते हुए भी मेरे टीचर को ऐसा नहीं बोलती हूँ, माँ बता रही है। और पिता ने सपोर्ट किया, पिता बोले हाँ बेटा ये बहुत चिंता करने की बात है, क्योंकि हमारे लिए अपना टीचर्स बहुत बड़ा स्थान है। कमियां मनुष्य में होता है, और पिताजी ने ऐड भी किया, उन्होंने ऐसा एकदम मना नहीं किया, बोले कमियां मनुष्य में होता है, कुछ कारणवश उनके तरफ से कभी कभी गलतियां हो सकते हैं, पर वो क्या माहौल में होता है ये जज करने का उम्र तेरा नहीं हुआ है। और वो बच्चा एकदम बंद हो गया। और मैं थोड़ी देर के बाद, साधारण आदमी चल रहा है ना, तो मैंने भी बोला आप माँ पिताओं को मेरा नमस्कार। अगर ऐसे माँ पिता है, कोई बच्चा गंदा नहीं हो सकता। और वो बच्चा को जब कोई व्यक्ति बाहर से मेरा माँ पिता बताया वाला बात को मान्यता दे रहा है, तो उसको मान्यता हो गया। और उसने मुझे पूछा आप कहाँ से हैं, वो बच्चा ने पूछा बहुत सुंदर से। तो फिर मैंने विवेकानंद केंद्र का इंट्रोडक्शन दिया। इससे क्या हो गया कि देखो समूह में हम हर एक का जो उत्तरदायित्व है, गलती को सुधारने का दायित्व हम सबके ऊपर है। कोई नहीं बता सकता है, अगर एक भी बच्चा अगर खराब आज हो रहा है, इसके लिए सब लोग जिम्मेवार है। कोई भी नहीं बता सकता है मैं जिम्मेवारी नहीं हूँ, सब कोई जिम्मेवार है। वो चाहे वो आपको उसका डायरेक्ट संबंध हो ना हो। तो हमने सोचना है कि हम माँ पिता और बच्चा और टीचर्स, हमने सपने एक साथ क्यों आना चाहिए, क्यों हमारा अंडरस्टैंडिंग एक होना चाहिए, क्यों हमने बच्चों को बढ़ाना चाहिए, कैसे हमने अपना माहौल स्कूल में और घरों में बन के देना चाहिए। ऐसा हमारा समाज में भी व्यवस्था हो कि हर एक बच्चा सच्चाई से जी सके, है ना। कभी कभी गलत होता है बच्चा,
बच्चे कभी कभी है ना, उनका उम्र जैसे जैसे होता है, वो हम लोग भी हुआ होगा, कुछ तो ऐसे बातें करते हैं या गलतियों में गिरते हैं। कभी कभी हमें बहुत सारे लोगों ने उठाया होगा, इस कारण से आज हम इस स्थान में बैठे हैं। कितनी गलती किए होंगे, है कि नहीं? तो हम जब गलतियां देखते हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाता है, किस तरह से समझाता है, हम क्या यूज करते हैं कि उनको सही चीज समझाने का यूज क्या करता है। आज देखिए, हमारा कहानी बताने का एक परंपरा होते थे ना, बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं घर में बैठेंगे, वो कहानियां बताएंगे। कहानियों के द्वारा उनको जीवन का मूल्य अंदर जाते थे। क्यों? माँ पिता को हमने रेस्पेक्ट करना चाहिए, और माँ पिता भी उस तरह का हो, वो उनका रेस्पेक्ट का लायक हो। अब जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जब तेजपुर में आए थे, बहुत बड़ा सुंदर इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने जब करप्शन के बारे में वगैरह बोल दिया, तो छोटा सा लड़का बोला कि करप्शन करप्शन सर आप बोल रहे हो, और मेरे घर में करप्शन होता है, मेरा पिताजी डॉक्टर है और सारा सैंपल्ड मेडिसिन हमारे घर में है, और वो बिक्री करते पैसा लेता है, ये क्या करप्शन नहीं है? बच्चा कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तब उन्होंने पूछा था माँ पिताजी को, कहाँ है बुलाओ, और माँ थी, बहुत कष्टों से सामने आए, टीचर को भी बुलाया, और उन्होंने कहा कि ये दोनों पिलर अगर सही हो तो बच्चा सही हो सकता है। हर एक ने अपना अपना जिम्मेवारी, अपना अपना दायित्व सही से करेगा। एक छोटा सा भी, जो को एक वीकेवी नलबाड़ी के पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स, अगर ऋत्विक सर और उनके टीम जिस तरह से एफर्ट लेता है, उस स्कूल को एक सुंदर सा माहौल बनाए, उसके लिए जो एफर्ट लेगा, उसके साथ सारे जो पेरेंट्स उनका भी थोड़ा थोड़ा समय देते हुए उसको सपोर्ट करेगा, तो इतना बच्चा जितना वहां पढ़ता है, वो कोई भी गलत नहीं हो सकता। यहां से हम शुरू कर सकता है, एक उदाहरण बन सकता है। ये स्कूल वो सारे नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा सुंदर उदाहरण बन सकता है, और उसके लिए सारे टीचर्स और सारे पेरेंट्स जिम्मेवार होगा। उसके अंदर से जो बच्चा निकलेगा, वो चाहे कोई भी बनो, वो समूह के लिए, हमारा समाज के लिए उदाहरण बन जाएगा। क्या नहीं कर सकने वाला बात है क्या? तो बच्चों को हमने क्या सिखाना चाहिए? अब देखिए, पहले तो हमारे घरों में ऐसा होता था, माँ पिताजी लोग बच्चों को कुछ खिलाने खाने के लिए देता है, तो माँ पिताजी स्पेशली बताता है, बेटा अगर कोई तुम्हारा दोस्त को नहीं होने से थोड़ा बांट के खाना, ऐसा बोलते थे। आज हम डब्बा देते हुए क्या बोलेंगे? देखो पूरा अकेला खाना है, किसी को अगर दिया तो देखो, ऐसा कह के डर दिखा के भेजता है। फिर भी बच्चा देता है, वो अलग बात है, फिर घर में आके झूठ बोलता है नहीं दिया। ऐसा देने वाले कितने बच्चों को मैंने बातचीत किया, बच्चा पूर्ण खाना दिया वाला बच्चों को भी मुझे मालूम है। अने जो जिस तरह से हमने बढ़ाना चाहिए, उसका उल्टा हम आज उनको संस्कार देता है, और जिस कारण से बच्चा कभी कभी कंफ्यूज भी होता है कि टीचर बोल रहा है ऐसा करना है, घर में गया तो ऐसा मिलता है, कभी घर में ऐसा बोलते हैं, स्कूल में आता तो उसका विपरीत मिलता है। और ये सब जो तालमेल, परस्परम भावयन्तः नहीं होता है, तब जाकर प्रॉब्लम शुरू होता है। इसीलिए हम सब अपना जिम्मेवारी समझें कि हमें ऐसे माहौल बनाना है जहां बच्चा अपने आप के साथ वो लड़ेगा अच्छा बनने के लिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत, आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः, ऐसा कहा। यानी तुम तुम्हारा मित्र हो, तुम तुम्हारा शत्रु हो, और तुम तुम्हारे साथ लड़ाई करो, और तुम तुम्हारे साथ बढ़ जाओ ऊपर में। जीवन में आगे बढ़ना है, खुद के साथ लड़ाई करो। यानी तुम्हारा जो कंपटीशन है, ये बाहर किसी के साथ नहीं, खुद के साथ। यानी क्या? कल का मैं कैसी थी, आज का मैं कैसी हूं, और आने वाला कल का मैं कैसा होना चाहिए, मैंने डिसीजन लेना है, अपने आप में बढ़ना है। उसके लिए मेरे को खुद के साथ में नियम लगाना होगा। यानी बच्चों को ये हमने बचपन से सिखाना है कि कैसे वो खुद के साथ में चेक करेंगे, खुद के साथ कंपटीशन करेगा, खुद के साथ बढ़ने का कोशिश करेगा, तब जाकर ये परस्परम भावयन्तः होगा कि खुद को समझेगा, वो दूसरों को भी समझेगा। जो कंपटीशन है उसके जगह पे कोऑपरेशन आएगा, एक दूसरे को समझेगा और ऐसे मिलकर आगे बढ़ेगा। आज टीम वर्क कहता है, आज हम अकेला अकेला जीने का बताते ही नहीं है। ये आज का नहीं है, हाँ, ये हमारा पुराण से ही है। अब आप रामायण में देखिए,
आज तो केरल में पूरा रामायण मासम चल रहा है। एवरी हाउस यू विल लिसन ओनली रीडिंग ऑफ रामायण। इस महीना ऐसा महीना है केरल में कि रामायण का बहुत बड़ा महत्व है, कि रामायण को देखो पूरा टीम वर्क का कहानी है ना। सीता मैया को ढूंढ के भगवान राम निकलते हैं और सुग्रीव को मिलता है और सारे वानर को मिलता है, सारे वानर मिलकर एक साथ जुड़। देखो इधर में जब अपना पुराण देखने से ये जो टीम वर्क में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सारे पेड़ पौधा, सारे छोटे छोटे गिलहरी जैसे जो जीवी भी उसमें उसका योगदान देता है। देखिए तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीवन का। एक गिलहरी भी अपना बड़ा पुल बनाने के लिए, राम का पुल बनाने के लिए सहायता कर सकता है। क्या बात है। और हमको क्या टीम वर्क को ही सिखाने के लिए बाहर से आना है। ये हमारा पुराण में कितने सालों से पहले करके आ रहा है। चाहे वो महाभारत ले लो, क्या जो कुछ भी ले लो, उसमें सब में एक टीम वर्क का कहता है। तो हम अपने घरों में बच्चों को अगर ये सिखाएगा तो वो किसी के साथ लड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि वो एक दूसरे को समझेगा और अपना उनको देंगे, उनसे जो सीखना है सीखेगा, दोनों मिलकर आगे बढ़ेगा, हमारा समाज अच्छा होगा। हमें ऐसा सुंदर समाज चाहिए आज, एक व्यवस्थित आदर्श समाज चाहिए जिसमें हम सब एक साथ जी सकते हैं, खुशी से जी सकता है। लड़ाई का मामला तो आएगा ही नहीं है कि हमारा सुंदरता ये मेकअप में नहीं होगा, फिर तो हमारा स्वभाव में होगा, हमारा आचरण में होगा। क्या बोलेंगे, मैं तो असम में आके बहुत चीज सीखा है। क्या सुंदर संस्कृति हम अपने लोगों को देता है। एक दिन हम जो रोइंग स्कूल में जा रहे थे तो सदिया में हमको नहाया स्कूल शुरू होना था, तो जमीन देखने के लिए वहां गाड़ी रुकी थी। तो वहां पे मैं थोड़ा सा टायर्ड थी तो गाड़ी में बैठी थी, तो मेरा ड्राइवर जो है वो बाहर खड़े थे। गांव से एक औरत आई और वो बहुत दूर से जा रही है। तो देखते हुए मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना दूर से क्यों जा रहा है, कि हम कुछ करेगा क्या उनको ऐसा। तो मेरे साथ में रामनाथ करके हमारा ड्राइवर था, मैंने उसको पूछा रामनाथ क्या हो गया। तो रामनाथ ने बोला नहीं दीदी, ये मेरा जो छाया है ना वो वहां तक है ना, उसमें उनका पाँव नहीं लगना है, इसलिए वो दूर से गया। देखो हमारे गांव में एक अतिथि आया है, हम नहीं जानते कौन आया है, और उनका सम्मान करना चाहिए, उनका छाया पर मेरा पाँव नहीं पड़े। क्या संस्कार है। देखो ये आसाम में नहीं, सब जगह पे है, देश में कहीं भी जाओ, ये हमारा संस्कार है। ये हम इसलिए मैंने बोला अपना और व्यवहार, अपना और पहचान, यानी हम अपना व्यवहार से हमारा परिचय दिया जाता है। देखिए तो ये हमारा संस्कार है और ये संस्कार हमें पुनः जीवित करना है। ये हमने सिर्फ खाना बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमारा शिक्षा ना हो, इसके लिए विवेकानंद केंद्र आपको एक साथ बुलाया है। आप विवेकानंद केंद्र जैसा विद्यालय आसाम जैसे जगह पे एक्सिस्ट होना है तो बिल्कुल आप लोगों का यानी पेरेंट्स का बिना सपोर्ट से होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्कूल ऐसा गवर्नमेंट सपोर्ट से चलने वाला स्कूल नहीं है। ये तो पूरा पेरेंट्स जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है उससे जो पैसा लेते हुए हमको सारा चीज करना है, बिल्डिंग भी खड़ा करना है, टीचर्स को भी सैलरी देना है और काम भी चलाना है। तो कितना महत्व है हर एक अपना योगदान समय समय पे दिया जाए, कि वो फीस कलेक्शन हो, जो भी कुछ हो, जो कैसे कैसे रूप में हम मदद कर सकते हैं। टीचर्स तो कभी कभी पूछते रहेंगे आपने फीस नहीं भरा, और हम लोगों को तो गुस्सा आता ही होगा, क्योंकि ये सब मैंने बहुत हैंडल किया, इसलिए मुझे मालूम है कैसे होता है। कभी कभी टीचर्स को बहुत पेरेंट्स टीचर्स को एकदम बरसता है, गालियां बरसता है और टीचर्स बहुत दुखी हो जाता है। और स्कूल का मैनेजमेंट तो टीचर्स के ऊपर बोलता है आप लोग फीस कलेक्शन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये चलाएंगे कैसे। इन्हें अच्छा एक विद्यालय चलाना है, उसको व्यवस्थित बच्चों को माहौल देना है, उसके लिए भी हमें परस्परम भावना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है, उनको सपोर्ट देना पड़ता है। तो ये सारे जो बात जब देखता है तो हमें एक स्कूल चलाना है तो कितना बड़ा जिम्मेवारी है। एक प्रिंसिपल को तो सर तो जरूर ये क्या बोलेंगे, और एक प्रिंसिपल को सर तो वो सफेद होगा ही होगा, कितना जवान भी हो वो जल्दी जल्दी सफेद होने का चांस है, क्योंकि इस तरह का अंदर पकना पड़ता है। तो क्या बताना चाह रही हूं मैं कि जो हमको इसलिए ऐसे पेरेंट्स का हमें सपोर्ट बहुत जरूरत है। हमने सबने मिलकर हमारा समाज का आगे बढ़ाने का काम जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबको एक साथ आना होगा,
एकजुट होकर काम करना होगा। तो इसी कारण से हमने सोचना है कि हमारा अपना ये जो स्कूल हो या हमारा पेरेंट्स का एसोसिएशन हो, हम सब मिलकर एक क्या बोलेंगे, एक मार्गदर्शन कैसे देंगे हमारे बच्चों को, तो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये मेरे माँ पिता और टीचर एक साथ हैं, तो हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मगर आज हमें बहुत जरूरत है कि बच्चों को उनका समस्या सुनने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो समस्या कुछ ऐसा होता है, उन लोग भी खुद ऐसा मैनेज नहीं कर सकता वाला चीज है। मगर कभी कभी छोटे बात है, उसको बड़ा सपोर्ट मिलने से क्या होता है कि ये सब आराम से वो सुधार भी सकते हैं। इसलिए भी हम सब एक साथ आना होगा। और मेरी बहुत ही अच्छा मौका मिला कि आप लोगों के साथ में थोड़ा सा बातचीत करने के लिए, और मैं आपको समय दूंगी, क्योंकि कुछ इंटरेक्शन होना सबसे अच्छा होगा कि कुछ बातचीत हो, ताकि हम थोड़ा सा शेयरिंग हो सकता है आपके साथ में, कुछ ऐसा बच्चों के बारे में कुछ पूछने का, या हमको अगर जरूर मालूम हो तो हम आपके साथ में शेयर भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए, यही मेरा इच्छा है। ऋतिक सर, आप या जो भी कोई है वो बता सकते हैं। एजुकेशन व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र पुनर्निर्माण। संस्कार घर से शुरू होता है। आपुनार व्यवहार, आपुनार परिचय। भारतीय संस्कृति कितनी पूर्ण है अपने आप में, ये सारी चीजें अभी दीदी ने हमें पुनः याद कराया। हमारी संस्कृति हमारा धरोहर, जो शायद दुनिया में किसी के भी और देश की ये संस्कृति आपको शायद ही कहीं मिलेगी, जो हम जमीन से जुड़े लोग, और आज हम अपनी संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। तो इस तरह का सेशन शायद हमें हमेशा करवाते रहना चाहिए, ताकि हम उस चीज को, कहते हैं ना, रिविजन मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वैसे ही अगर हम बार बार उस चीज को याद कराते रहेंगे, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, तो हम ये छोटी छोटी बातें शायद न भूलें और रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को एक अच्छा संस्कार दे पाएंगे। संस्कार जो शायद नींव होती है हर एक बच्चे के लिए, जो बहुत जरूरी है। आज जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, और हम अपने आसपास सभी लोगों को उसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी समझते हैं। सबसे पहले हमें अपने घर पे देखना है, यही बात हमें दीदी ने समझाया। यहाँ उपस्थित जितने भी अभिभावक हैं, अगर कोई भी प्रश्न अपने बच्चों से रिलेटेड या किसी भी मतलब खुद एज अ मातृशक्ति पूछना चाहें, तो आप राधा दीदी से पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ उठाकर अनलॉक करने के लिए कहें और आप आराम से पूछ सकते हैं। राधा दीदी, प्लीज। হয়, ৰাধা দিদিক এটা মই প্ৰশ্ন সুধিব খুজিছো। দিদি নিশ্চয় অসমীয়া বুজি পায়? Yes, yes. হয়, এই যে ল'ৰাজন স্কিন কেয়াৰ কৰি, ল'ৰা না ছোৱালী মই নাজানো, মই ভাবো যে এইজন সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী হ'ব, খুব কম বয়সীয়া। এইটোতো এক ধৰণৰ প্ৰব্লেম ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত। এইটো কি ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰি? তো ইচ্ছা কৰি এইটো স্কিন শেয়াৰ কৰি আছে, গান বজাইছে, এইটো খুব দুখ লাগিছে, দুখ পাইছো আমি। ये इस मामले में ज्यादा दुख नहीं पाना है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि जो अच्छा चीज को सुनने को भी तकलीफ होने वाला समय हो जाता है, क्योंकि इतना मन विकृत हो चुका है कि अच्छा चीज सुनने से और विकृत हो जाता है मन। तो ऐसा हो सकता है, या तो ये तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंटेशन मोड में गया और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आउट होगा, क्योंकि ये सब तो एक टेक्निकल बात होता है ना। तो इससे भी हो सकता है, हम एकदम सा ऐसा भी नहीं बता सकता कि जानबूझकर हो रहा है। जहां तहां क्लिक करके जो सीखने के हिसाब से चले जाता है ऐसा एक बड़ा प्रोग्राम के समय में, उतना तो उनका ये नहीं भी होता होगा। बट ये ज्यादातर तो इस तरह का जो समूह में अच्छा से रहते समय में इस तरह का विकृत चिंता या विचार, ये इस वजह से आ जाता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक सेल्फ एस्टीम महसूस नहीं करता, तो कुछ अच्छा चीज को वो सहन नहीं होता।
तो ये हो सकता है। तो इसके लिए हमें कोई ज्यादा चिंता नहीं करना है, हमें अपना काम करता जाना है और एक न एक दिन अच्छाई का फायदा तो होगा ही होगा। तो हमें उस चीज का ज्यादा चिंता मत करिए कि अभी फिर भी अपना बच्चा हो तो अगर अपना स्कूल का रिलेटेड है तो जरूर हमें फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि और जिस तरह से वो कर रहा है वो चीज अच्छा नहीं है, तो उसको करेक्ट करना ही होगा। तो पेरेंट्स हो तो उनको साथ में हमें फाइंड आउट करके बात करना ही होगा। बट उसके लिए ज्यादा अपना मन बिगाड़िए मत, ये जो सुंदर सा माहौल भी मत खराब करिए कि आप लोग आगे बढ़िए। बहुत ही इंस्पिरेशनल हो दी आप। कभी भी इतना कुछ होने के बाद हम सब यहाँ विचलित हो गए थे, लेकिन आपने उसी चीज को इतनी पॉजिटिव तरीके से हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। यही छोटी छोटी चीजें हैं, शायद अगर हम अपने आप को विचलित ना होने दें तो हम बहुत सारी स्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। हाँ जी, विष्णु सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? विष्णु सर। हाँ, मैं सुनाई दे रहा हूँ सभी को? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मिलने पर कुछ ना कुछ जानने का हमेशा इच्छा रहता है। शायद फैन का आवाज सुनाई दे रहा होगा। यस, दीदी, आज 2 साल, प्राय 2 साल से हम लोग इस पेंडेमिक के सिचुएशन में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन सब लोगों से मतलब बातचीत हो रहा है। आज आपसे भी हम लोग ऑनलाइन में ही मिल रहे हैं। मैं क्लास का एक सिचुएशन आपसे शेयर करना चाह रहा हूं जिसमें आई फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल। कभी कभी ऐसा होता है छोटे बच्चों के लिए दैट they do not understand English. I have to take their class in English. अब सिचुएशन ऐसा है कि मैं उनको ऑनलाइन मोड में कैसे ये अपना पेशेंस रखते हुए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज कैसे सिखाना है, अपना पेशेंस रखते हुए वो लोगों को समझाऊं कैसे कि दैट यू शुड बी लर्निंग द मोड। क्योंकि बच्चों के लिए भी हमारे लिए भी ये तकनीक बहुत नया है। इट इज अ वेरी न्यू टेक्निक फॉर अस, so we are also learning. Didi, please help us, please guide us how we can do it. वेरी 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 वंडरफुल। क्या ये जो मामला है ना, जब अभी जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है, ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। ये एक एकदम हरदम इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है। और इस तरह का जो माहौल में जब हमें छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाना होता है तो जरूर हमें तकलीफ होगा, क्योंकि एक लैंग्वेज जो मीडियम जो यूज कर रहे हैं जो उनका बस का बात नहीं है, और हमें तो इंग्लिश मीडियम होने के नाते हमें इंग्लिश में ही बोलना है। ये सारा जो समस्या होते समय में हम इस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोड़ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं एकदम बहुत रिजिड हो जाएंगे, नहीं हम तो इंग्लिश में ही बोलेंगे, नहीं। अगर हमें यहाँ जरूरत है कि बच्चों का आज समझना हमारे लिए जरूरत है, भाषा का इम्पोर्टेंस आज नहीं है हमारे पास, हमें इसको चेंज करना ही होगा। क्योंकि आज हमें इस मोड में आना है तो छोटे बच्चे हैं और आज हमको उनको समझाना होगा, तो हमें उस मोड में आना ही पड़ेगा। क्योंकि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है कि जो बात जो मैं बता रही हूँ उसको समझना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हमें इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। जो एक ऑफलाइन मोड इज डिफरेंट। जब हम इस तरह का एक मोड में हैं तो हमें जरूर आज हम इस स्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, स्थिति के हिसाब से जाना है। उस समय में हम वो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जाने से हम जो करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा चिंता भाषा का ना हो जाए, और ज्यादा चिंता हम कैसे बोलता है या हमारा ये सब ठीक हो रहा है कि नहीं, वो उससे ना हो जाए। बच्चों को हमारे तरफ आकर्षित होना पड़े, क्योंकि अभी वो घर में बैठे हुए हैं, माहौल डिफरेंट है और उसमें उनका मन पकड़ना इतना आसान नहीं होता। और अलग अलग घर में बच्चे बैठे हैं, टीचर एक अलग जगह पे बैठे हुए हैं, और इसमें हमको उनका मन को हमारे पास में एकत्रित करना इतना आसान बात नहीं है। और यहाँ इसीलिए पेरेंट्स का, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा को सही हिसाब से बिठाए, उनका व्यवहार अच्छा हो। इसीलिए जो अभी जैसे क्या कपड़े पहने, ज्यादातर मैं देख रही हूँ कैजुअल ड्रेस में नहीं बैठे हैं आप लोग। क्यों आप लोग आज ड्रेसअप करके अपने घर में ऐसा बैठना है? क्योंकि इसमें भी एक मन बनता है। तो बच्चा क्लास में है,
क्लास का समय है, माँ पिता जरूर ख्याल करें, उनको जो ड्रेस पहनना चाहिए उस ड्रेस में ही बिठाएं, ताकि उसका मन बन गया कि मैं क्लास में हूँ। यानी वो ड्रेस का बहुत बड़ा मन में असर। अभी कैजुअल ड्रेस में कहीं से भी कोर्ट में बिठा दो तो माहौल अलग होगा, कि उनको लेटने का मन करेगा या तो उधर उधर कुचली करने का मन करेगा। नहीं, ये क्लास में है, उस माहौल बनाना होगा। उसके लिए हमारा अगेन परस्परम भावयन्तः, माँ पिताजी भी समझे और टीचर्स भी समझे। तो हमको इस तरह का जो व्यवहार बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ करना ही होगा, दूसरा हमें उपाय नहीं है। तो इसलिए ज्यादा हम क्या बोलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन पर अटक ना रहे, हम इतना भी स्टिफ ना हो जाए, कि हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा इस तरह का माहौल में। ये ठीक हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ये सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ जो भी अभिभावक हैं, अगर अपनी स्क्रीन ऑन कर हाथ अगर ऊपर करेंगे तो हम उनके सवाल जरूर राधा दीदी तक पहुंचाएंगे। अगर किसी को भी कुछ भी पूछना हो, अगर मन में कोई भी संशय है अपने बच्चों को लेकर, अपने टीचर्स को लेकर, कुछ भी, तो आप जरूर राधा दीदी से पूछ सकते हैं। To unmute everybody now. Yeah, Vishnu is also raised his hand. Vishnu sir, do you want to ask anything? Yes, sir. I need to say something. We should train them how to raise hands. We will take just a minute. Yes, Didi, may I? Sure, sir. Yes. Please go ahead. We need yes, to take a digital class for everyone. Yes. সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছো, এইটো চাওক, আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত তলত 4টা সাৰ্কেল আছে, তাৰ মাজত 3 নম্বৰটো 3 ডটস আছে, তাতে ক্লিক কৰিলে আপুনি এটা পপ আপ মেনু উঠি আহে। একদম ওপৰত কিছুমান ইমোজি আছে, তাৰ লেফট হেণ্ড সাইডত হাত দেখা যায়। ঠিক, এইটো ক্লিক কৰিলে আপুনি ৰেইজ হ্যান্ড কৰিব পাৰে। এইটো আপুনি যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া আমি গম পাম যে আপুনি মানে হাত উঠাইছে বুলি। সবে যোনে যোনে কথা পাতিব খুজি আছে, প্লিজ নিজৰ এইটো প্ৰচিডিউৰত হাতটো ৰেজ কৰক। মই আকৌ কৈ আছো, আপোনাৰ স্ক্ৰীনত একদম তলত চাওক যে 3 ডটস আহি আছে, এইটো ক্লিক কৰিলে আপুনি এটা পপ আপ মেনু উঠি আহিব। তাৰ একদম ওপৰত লেফট হেণ্ড সাইডত চাওক এটা দেখা যাব, ইয়েলো কালাৰৰ বিলাক নহয়, গ্ৰে কালাৰৰ ভিতৰত হোৱাইট চিনেৰে আকা। এইটো ক্লিক কৰক, তেতিয়া আমি গম পাই যাম যে কেনেকে হ্যান্ড ৰেজ কৰিব পাৰে, কোনে কথা পাতিব খুজি আছে। I think that will work. Didi, please go ahead. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपने भी एक क्वेश्चन आया है। हाँ। घर का माहौल कैसे ठीक रखे, प्लीज एक्सप्लेन दीदी। यानी ये पूछा है ज्योतिर्मयी, यानी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अपना घर का माहौल कैसे ठीक रखे। ये बहुत हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत जरूरत है। यानी हमारा घर का कुछ नियम सिस्टम होना चाहिए, कि हम अपना जो घर के लिए एक नियम बनाए। हम सब कितना बजे उठेंगे, उठने के बाद में हमारा क्या क्या कार्यक्रम होगा, कैसे कैसे करने वाला है, बच्चों को क्या सिस्टम होना चाहिए, उन्हें नहा धो के आने से क्या करना चाहिए, तो उनको एक अगरबत्ती जलाने का दायित्व देंगे क्या, उनको कुछ घर का अरेंजमेंट करके दायित्व देने हैं क्या, उनका खुद का बेड वो खुद अरेंज करने का काम उनको देंगे क्या, या माँ को सारा काम माँ को ही करना पड़ेगा क्या, बच्चों को खुद का काम खुद करने के लिए सिखाएंगे क्या। सारे लोग अपने अपने दायित्व करेंगे, घर में किसी के ऊपर में कोई भारी नहीं पड़ता है, सब मिलकर घर का काम तुरंत सही हो जाएगा। उसमें चाहे पिताजी हो, माता हो, जो भी कोई हो, और बच्चों को नियमित रूप से उनका क्या रूटीन होना चाहिए। हमको याद आता है, कोई घर में हमने छोटे में देखा है कि माँ पिता बच्चा को बताते हैं, उठने के साथ साथ वो भगवान का याद करे, भूमि देवी पर पाँव रखने के पहले उनसे क्षमा मांगे कि मैं अपने पाँव रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, माँ मुझे क्षमा करो, माफ कर दो, है ना, मेरा पाँव रखने जा रहा है। इससे लेकर बच्चा अपने जीवन में नतमस्तक होना सीखते हैं, वो जरूरत है। और वो हर चीज में वो भावना आने लगता है, तो वो जो उनके अंदर में वो भव्यता,
वो नम्रता आने लगता है, जीवन में फर्क पड़ता है। ये सारे जो नियम जो हमारे संस्कार में है ना, ये इसलिए दिया था, माँ पिता का पाँव छूना, उनको सम्मान करना। तो ये जो घर का माहौल यानी बड़े जैसे करते हैं वैसे छोटे देख के सीखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी कैसे घर में बड़े आचरण करते हैं, आज श्रेष्ठ लोग कैसे आचरण करते हैं उसको देखकर फॉलो करते हैं। आप कितना उपदेश दो उसको थोड़ी अंदर जाता है, नहीं जाता है। आप क्या करते हैं वो देख के फॉलो करता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आप कभी भी देखो, अगर मैं अभी आपको एक टेस्ट करूंगी पता चलेगा। तो हम लोगों ने ऐसा पेरेंट्स का वर्कशॉप में किया था कि सबको बोला सब लोग नमस्ते बोलो, तो हमने भी नमस्ते करते हुए सब लोग नमस्ते बोला। सब लोग अपने सिर पे का हाथ रखो, सब लोग सिर पे हाथ रखा, सब अपना फोरहेड में हाथ रखो, और मैंने कान में पकड़ा, सब कान में पकड़ के बैठा था। बोला तो मैंने बोला कपाल में हाथ रखो, मगर मैंने तो यहाँ रखा था, सब यहाँ पकड़ के, पढ़े लिखे डायरेक्टर लोग वगैरह भी कान में पकड़ के बैठा था। ये क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? अरे दीदी आपने तो ऐसा किया ना। यानी इसका मतलब क्या है, श्रेष्ठ लोग जो करता है उसको लोग फॉलो करता है, बोलता है तो वो सुनता है, नहीं सुनता मालूम नहीं। ये ने घर का माहौल हमें क्यों सही रखना चाहिए, इसलिए सही रखना चाहिए। अरे उसके लिए क्या करना है, इन्हें घर के सारे लोग मिलकर उसके लिए विचार करना पड़ेगा। हमारा घर कैसा होना चाहिए, माँ पिता बड़े जो कोई रहता है सब मिलकर उसका तय करना है। तो रखने के लिए हम चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, हम नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये सारे जो बातें हमारे हाथ में है। तो हमें कैसे हमारा घर होना चाहिए, आसाम में इस घर में तो मैंने देखा है, ये तो सिस्टम तो है ही है। अभी धीरे धीरे कुछ कुछ कारणवश हम सब जॉब में हो गया हमारा, इसमें हम कुछ कुछ जो संस्कार हैं वो हमको चाहते हुए भी हम नहीं पालन करता है, ऐसा स्थिति है। मगर उसको वापस लाना है जानबूझकर, क्योंकि हम क्या के लिए जी रहा है। आज हमारा बच्चा नहीं बनेगा, कल ये हमारे लिए समस्या खड़ा करेगा, तो हमारे जीवन का अंतिम समय में हमें क्या होने वाला है। हम इनके लिए जी रहा है, इनके लिए कमा रहा है, इनके लिए सब कुछ कर रहा है, और उनके लिए हमें समय नहीं है। फिर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएगा हम अंत में? और इसके दुख किसको होने वाला है, हमको ही होने वाला है कि नहीं? तो हमारे जीवन का हम कितना समय घर के लिए जिएगा, एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाएगा, बातें बताएंगे, कैसे होंगे, ये सारा जो है ये हमें करना ही होगा, क्योंकि हम इन्हीं के लिए जी रहा है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। एक गृहस्थ है ना, अच्छा गृहस्थी स्वभाव, उसी के लिए गृहस्थ है। गृहस्थ सही होगा तो उधर से सन्यासी भी जन्म ले सकता है। अगर एक सन्यासी एक जन्म लेना है घर में, उसके लिए गृहस्थ बहुत बड़ा पुण्य कमाना होता है, ऐसा आराम से नहीं मिलता। अगर एक सत्राधिकार एक घर से जन्म हुआ, मतलब वो घर कितने 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 सदियों से अच्छा करता आ रहा है, तब एक सत्राधिकार एक घर से निकलता है। कितना बड़ा बात है, सोचिए, बड़ा परंपरा की बात है। तो इसीलिए हमें घर का माहौल सही रखना होगा, ये हमारा हाथ में है। थैंक यू सो मच दीदी। घर का माहौल सचमुच बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स बहुत सारी चीजें हमें बोलकर नहीं समझाते थे, सिर्फ उनकी एक्टिविटीज देखकर हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जैसे अगर सुबह उठाना हो तो रूम में आके पर्दे हटा के चले जाना। फिर कुछ जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी मम्मी मुझे अपने पास बैठाती थी और वो मुझसे सिर्फ पूछती रहती, इतना डाल दूं, इतना डाल दूं। और ये बताते बताते मैंने बहुत सारी चीजें उनसे बिना, मतलब उन्होंने मुझे प्रेशराइज करके नहीं सिखाया, लेकिन बिना प्रेशराइज किए भी बहुत कुछ सिखाया। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम पेरेंट्स ध्यान दें तो बिना प्रेशराइज किए शायद जरूर हम सिखा सकते हैं। और आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि सारी चीजें हम पेरेंट्स पे डिपेंड करती है कि हम अपने घर का माहौल, अपने घर का, अपने बच्चों के लिए क्या नियम और क्या कानून बनाते हैं घर पे। और कोई कुछ पूछना चाहता है? अब एक क्वेश्चन आया है कि दीदी। मोबाइल का एडिक्शन कैसा बंद करे बच्चों का, ऐसा एक क्वेश्चन आया है। अब दीदी देखिए, 2-3 क्वेश्चन है दीदी। हाँ दीदी 2-3 क्वेश्चन है। इससे पहले ज्योतिर्मय भत्ता उन्होंने, उनका एक क्वेश्चन है, नमस्ते दीदी, बच्चों का गुस्सा आने से क्या करना ठीक है? ये
क्वेश्चन है। हाँ ठीक हाँ। है, एक एक करके करेंगे, समय भी ठीक है, बहुत ठीक कम है ना आपके पास में। ठीक ठीक है। कि देखिए ये जो गुस्सा जो चीज है ना, ये कुछ अलग अलग उसका विषय होता है। गुस्सा आने के पीछे बहुत सारा कारण होता है। तो बच्चों का गुस्सा जो है ना, वो बहुत हमें ध्यान से देखना होगा कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कि क्या चीज के लिए उनको गुस्सा आ रहा है। तो ये चीज को या तो पेरेंट्स को समझना होगा, या तो स्कूल में जो टीचर्स को है इसको थोड़ा चेक करना होगा। छोटे बच्चों के अंदर में बहुत क्या बोलेंगे उसको, वो उसके अंदर में ईगो बहुत ज्यादा होता है। तो वो ईगो कैसे परिणित करेगा, वो गुस्से में करेगा। तो छोटे छोटे अभी गुस्सा होने से क्या हो जाता है, फिर अपना बुद्धि का जो ना वो बुद्धि काम ही नहीं करता है। उसमें भी भगवत गीता में भगवान बहुत सुंदर बताते हैं, ये सारे जो जीवन का चीज चाहिए ना, वो भगवत गीता में है। इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। मगर मैं जब आसाम में थे तो लोग बोलते थे भगवत गीता नहीं करना है, घर में झगड़ा होगा, ऐसा कहते थे। कि मुझे आश्चर्य लगता था कि ये चीज है कि हमारे जीवन को कैसे चलाना है, ये बताया वाला उसमें है। क्योंकि हम कुछ कुछ विषयों का चिंतन मंथन करता रहता है ना, आकर्षित होता है, अट्रैक्शन होता है, फिर उसको पाना है, ये विचार चलता रहता है। ये हमारा मन को आगे आगे गुस्सा में परिणित करता है। तो जब गुस्सा आ जाता है तो हमारा बुद्धि का जो है वो नाश होता है। बुद्धि जब नाश होता है, हमें विवेक नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा बुद्धि ही इतना अलग ही हो जाता है। इस कारण से सारा प्रॉब्लम होता है। तो क्या विषय उनका मन में चल रहा है, ऐसा हमने चेक करना पड़ेगा कि किस कारण से ये हो रहा है। तो बच्चा का गुस्सा हमने सही हिसाब से, इन्हें ज्यादातर इसके लिए कहानियां सबसे अच्छा है। सुंदर सुंदर कहानियां बचपन से बताया करो, कि वो कहानी सुनकर ही उनको चीज को समझ में आने लगता है। कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कहानी बोलना और उसके द्वारा उस उपदेश को डायरेक्ट ना देते हुए कहानी अंदर पहुंचते हैं, और इससे मनुष्य का व्यक्ति का रूपांतरण होता है, यानी व्यक्ति का निर्माण होता है, उसका स्वभाव का जो सही शेप हम दे पाते हैं। तो इसलिए गुस्सा नहीं होना ये संभव नहीं है। अभी अपने को भी लोहा के ऊपर में गुस्सा आया होगा ना, क्योंकि कितना बिगाड़ रहा है, करे इसमें बिगाड़ रहा है, अभी कंटिन्यूअसली मैसेज भेज रहा है हमको अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो, नहीं तुमको अनम्यूट नहीं करेगा। तो ये गुस्सा, मगर इधर वो गुस्सा जरूरत है, कोई अच्छी चीज के लिए किसी को हम ये कर रहा है कि उनको दिक्कत देने का हमारा इच्छा नहीं है, और वो इतना बड़ा एक प्रोग्राम को बिगाड़ रहा है, इसलिए हमने उनको एक साइड में इस कर को रखना पड़ेगा। मगर ये जो मामला है ना, ये मामला बच्चों को बचपन से समझाने के लिए एक ही मार्ग है, उनको सबसे अच्छा है कि कहानी बताओ, उनको गीत सिखाओ, उनको थोड़ा ध्यान करना सिखाओ, उनको अंदर में गुस्सा आने का कारण ढूंढने का सिखाओ। कि अभी हम तो स्कूल में ऐसा करते थे, बच्चों को, छोटे बच्चे क्लास 1 के बच्चों को भी हम बिठा के, हम उनको आंख बंद करके बैठने के लिए देते थे, फिर अंदर जाओ, अब क्या विचार चल रहा है, ये विचार क्यों आ रहा है, इससे फायदा होगा या नहीं होगा। बच्चे खुलने के बाद में इतना ओपनली बात बताते हैं कि हाँ ये बहुत खराब चीज है, हमको कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा वो बताने लगता है। समझ में आ गया ना। तो इसी तरह हमें जो गुस्सा एक चीज है, वो नहीं आना ये नहीं सोचना है, वो आएगा ही। ये रिकॉग्नाइज होने से हम उसे बाहर आ सकता है, इससे हमें आगे बढ़ने का भी मिल सकता है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यू सेड? Yes, I am coming to it. Today's generation are giving more priority to others than our Indian tradition. According to them, India is very primitive. They are developing a negative attitude towards the culture of India. How to tackle this? This is a question from Rajan Bashyaji. मुझे लगता है कि अपने टीचर्स का जो क्वेश्चंस होगा वो उसके लिए ऋतिक सर ने एक क्लास सेपरेट ऑर्गेनाइज करने से हम उनको बातचीत करेंगे। आज हम पेरेंट्स के लिए समय देना ज्यादा अच्छा होगा कि अगर हमको संस्कार है, जो हमारा संस्कार, आज हमारा संस्कार को बच्चे या हमारे घर में फॉलो नहीं हो रहा है, और बाकी जो पाश्चात्य संस्कार की ओर उनका मन जा रहा है, ये बच्चों का गलती नहीं है, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन चुका है। इसलिए हम अपना संस्कार के ऊपर में कितना सम्मान करते हैं घर में, कि माँ पिता या
पूर्वज जो है, हमारा पूर्वज का जो करता आया उसका कैसे हम सम्मान करता है, ये बात घरों में डिस्कशन में आए, ये बहुत जरूरत है। बच्चे माँ पिता एक साथ बैठते हुए इस बारे में चर्चा करें और हमारा पूर्वजों का जो हमको देते आए वाले संस्कार का, परंपरागत आए वाला जो संस्कार का गुण क्या है और इससे हमारा माहौल कैसा रहा। जैसे हम पहले जब हमारा गुरुकुल सिस्टम के बारे में जब हम कहते हैं, हमें कितना अभिमान होता है, हम कितना गर्व होता है, कितने बात उसमें हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि उसमें इतना सब कुछ था कि बच्चों को ऐसा पर्यावरण के साथ बढ़ना, उनका जो इन द निरीक्षण बोध जो आना, कि उनके जीवन में निरीक्षण हो, वो ऑब्जर्व करें, प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, ये सारे बातों में हम बहुत ध्यान करते थे, है या नहीं? तो उस कारण से हमारे जीवन में बच्चों को जीना सीखना बहुत बड़ा होता था। तो हमें ये चीज अपने घर में बार बार उस पर चर्चा होना है और बच्चों को लगना चाहिए मेरे बड़े जो है इसको बड़ा मान्यता देता है। हमको अपने घर में हम माहौल लाना है ताकि बच्चा उसको पकड़ेगा। नहीं हो तो हम कितना भी सोचे तो नहीं मिलेगा। हम कितना सम्मान इसको देता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देने से ही बाकी जो चीजें हैं वो आएगा। नहीं होने से बुद्धि बिगाड़ेगा और हम जितना भी सोचो उनको लिए कुछ नहीं कर सकेंगे हम। तो इसलिए वो विचार आप कर सकते हैं। Didi, the next question is from another parent. He is asking how to control. Didi, please explain how to control our children from the mobile addiction. This is a question from Mrigangi. तो जहां हम मोबाइल एडिक्शन जो कहते हैं ना, तो अभी ये मोबाइल एडिक्शन यानी इसके पीछे भी कहाँ से शुरू हो गया? ये घर से ही शुरू हो गया। सो जो हम जैसे घरों का जो माहौल है, माँ पिता मोबाइल में बिजी है, जहां भी अभी देखो लोग एक साथ आता है, मिलने के लिए आता है, मगर हर कोई अपने मोबाइल में बिजी होता है। तो बच्चे ये देखकर बड़ा होता है कि उनको लगता है आज जो कोई और उपाय नहीं है, बिजी होना है तो मोबाइल में बिजी हो जाओ। और ऐसा माहौल में अगर हमें इससे बाहर आना है तो घर में नियम बनाना होगा, कितना समय हम मोबाइल में देने और कितना समय हमें आपस में बातचीत करना है, क्या बातचीत करना चाहिए। और बच्चों का बाकी जो सारे जो टैलेंट्स है उसको उनको क्या बोलेंगे, उनको प्रकाशन करने के लिए या बाहर लाने के लिए, प्रकटीकरण करने के लिए घर के अंदर में माहौल हो। जैसे उनके अंदर में बहुत सारा कलाएं रहता है, वो गा सकते हैं, बोल सकते हैं या एक्टिंग कर सकता है। ये सबके लिए जब हम सम्मान करेंगे तो फिर इसके साथ में से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब हम एडिक्शन नहीं होना है, मोबाइल नहीं देना है बोलने से तो जो नहीं बोलने हैं तो उसका पीछे ज्यादा फोर्स आएगा। उसके वजह हम क्या करने से उससे ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ये विचार करना पड़ेगा। तो उनको एंगेज करो। जो अभी विवेकानंद केंद्र में जब कैंप चलाता है, सुबह से शाम तक उनको रूटीन है, ऐसे रूटीन है कि उनको दूसरा कुछ सोचने का समय नहीं है। कोई कोई बोलते मोबाइल भूल गया, इतना दिन व्हाट्सएप में समय नहीं बिताया, फेसबुक में समय नहीं बिताया। क्यों? क्योंकि वो कोई क्रिएटिव चीज में एंगेज हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो हमें पॉजिटिव माहौल देना होगा जहां पे उनका जो अच्छाई के लिए वो समय देगा। और मोबाइल एडिक्शन बोल के रहेंगे तो कभी भी मोबाइल के बाहर आने वाला नहीं है, हम लोग भी नहीं आएगा। तो हमें अपने आप को इस तरह, अभी देखिए हम इतने 1-1.5 घंटा हम एक साथ बैठे हैं, हमें कहाँ समय है मोबाइल ढूंढने के लिए। हम इतना विचार कर रहे हैं, वो छोटा छोटा विचार नहीं, बड़ा बड़ा विचार कर रहा है, खुद के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए विचार कर रहा है। हम सब कुछ भूला है कि नहीं भूला है? भले ही हम मोबाइल में ही देके बैठे हुए हैं, मोबाइल का ही उपयोग कर रहा है, किंतु हम बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो हमें क्या बोलेंगे, उसको चैनलाइज करना होगा। इंस्टेड ऑफ डोंट यूज मोबाइल, ऐसा नहीं है, जो उसके अलावा क्या देने से उससे छूट जाएगा, ये काम ढूंढना पड़ेगा। तो वो कार्य करना होगा। इतना आसान नहीं है, माहौल बहुत बिगड़ चुका है और इसीलिए वो करना है तो बहुत कॉन्शियसली यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स एक साथ आने से ही होगा, नहीं होने से होने वाला नहीं है। ये इसके लिए हमें एक साथ आना होगा। আৰু যদি কোনোবা অভিভাৱক অভিভাৱিকা আৰু যদি প্ৰশ্ন কৰিব খোজে, যদিও আমাৰ সময় হৈছে, এতিয়া 8:30 হৈ গৈছে,
আমি কিজানি আৰু 2-3টা প্ৰশ্ন লব পাৰিম নেকি আপোনালোকে যদি chat box हाँ ऋत्विक सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आया है, हाउ कैन वन गेट रिड ऑफ स्लैंग वर्ड्स, अल्कोहल, गुटखा एक्सेट्रा, बिकॉज दीज बैड हैबिट्स ऑफ पेरेंट्स क्रिएट बैड इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ देयर चिल्ड्रन। नाउ देखिए, ये चीज हमें कॉन्शियसली अवेयरनेस लाना होगा। जो हम नहीं खाना चाहिए ये बच्चे भी जानते हैं, जो नहीं है अच्छा नहीं है। गंदे शब्द बोलने के बाद में लोगों के अंदर में उद्वेग पैदा करता है, ये हमें मालूम है। इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम जयत। भगवत गीता ही सब चीज के लिए हमारे लिए सॉल्यूशन है, कि भगवान ने कहा है उसमें कि हम बोलने वाला हर एक शब्द जो है वो चुनकर बातचीत करें, ताकि इससे अच्छा ही हो, बुरा होने का मौका ना मिले। ये स्लैंग वर्ड्स उपयोग करने वाला बात के लिए मैं बता रही हूँ। और दूसरी बात है कि कुछ कुछ अल्कोहल, अभी कोई बता रहे थे ना, उसमें कुछ कुछ लिख रहा था ना कि अल्कोहल इज बेटर देन यू वगैरह। तो जो ये जो उस चीज को हम पसंद करने लगा, क्योंकि हमको लगने लगता है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन में, इसका बिना हम नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा चीज का अनुभव नहीं है, या उसको हमने एंजॉय नहीं किया। कि जीवन में सच्चा रास्ता पे चलकर सच्चाई जीते हुए जो प्राण में जो क्या बोलेंगे हमें खुशी मिलता है, उसको हमने पी कर नहीं देखा, या उसका रस हमने पाया नहीं है। इसी की वजह से जो हमें खत्म करता है उस चीज को हम अच्छा लगने लगता है। तो गलत अच्छा लगने लगता है मतलब हम ईश्वरीयत्व को छोड़कर असुरत्व की ओर जाने लगा, इसका मतलब है। तो उससे बाहर आना है तो ईश्वरीयता जो है वो बहुत ज्यादा जोर आना पड़ेगा, तब जो असुरता है वो खत्म हो सकता है। तभी भी एक ही उपाय है, ईश्वरीयता को बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा, एक ही उपाय है, दूसरा कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है। हमें पक्का होना पड़ेगा। इसके लिए बचपन से बच्चों को ट्रेनिंग देना होगा, अच्छा बच्चा हमारे घर में बन जाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड एवरी वन ऑफ अस हैव टू कॉन्शियसली वर्क फॉर दिस, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। कि हमें मिलकर काम करना है और हम कर सकते हैं। नलवाड़ी इसके लिए एक एग्जाम्पल जरूर बन सकता है, मुझे मालूम हो गया, क्योंकि पेरेंट्स ही सब कुछ कंडक्ट कर रहा है, इतना बड़ा बात है। आई मस्ट कंग्रेचुलेट, आज जो भी कोई पेरेंट्स ने ये दायित्व लेकर हम कंडक्ट करेंगे ये बोला ना, आप लोग धन्य हैं कि आपको भगवान का कृपा है, इसलिए आप ऐसा स्थिति में पहुंचा है कि मैं इस तरह का कार्य को मैं होस्ट करूंगी, मैं उसको एंकर करूंगी, मैं उसको स्वागत करूंगी, या मैं इसके लिए भजन गाऊंगी। ये सारा जो जिम्मेवारी आपने आज लिया, रियली यू आर ब्लेस्ड। आपको भगवान का कृपा है, इसलिए काम हुआ है। भगवान आपको ऐसे ही आशीर्वाद में रखे, यही मेरा प्रार्थना है। बहुत बहुत अच्छा लगा, समय ज्यादा हो गया लगता है। दीदी और एक क्वेश्चन लेंगे क्या? जरूर दे लीजिए। हम एक है ऐसा, हाउ कैन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन? दिस इज द क्वेश्चन। सोनारानी दत्ता दीदी से ये क्वेश्चन आया है। देखिए, ये कंसंट्रेशन इज की टू सक्सेस, स्वामी विवेकानंद सेड। अगर जीवन में आपको विजय पाना है, आपको एकाग्रता होना ही है, उसका अलावा दूसरा उपाय नहीं। एकाग्रता होने के लिए साइलेंस ऑफ माइंड लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, यानी मन साइलेंस में आना चाहिए। साइलेंस यानी क्या है? मुंह बंद करके बैठने से साइलेंस नहीं होता, क्योंकि क्या क्या चलता रहता है उसका चेक करना पड़ेगा। विचारों का कितना विचार चलता रहता है हमारे मन में। हम एक जगह पे बैठे हैं, किसी को देख रहा है, मगर मन कहीं और हो सकता है। मेरे हाथ, मैं आपको बात कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, किंतु आपका मन कहीं और हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है कि नहीं। तो कंसंट्रेशन करना है तो हमको पता चलता है हमारा मन चला गया, उसको वापस लाना होगा। बार बार अभ्यास है न तो कौंतेय, ऐसा भगवान ने भगवत गीता ही बोलना पड़ता है। अभ्यास करना होगा, बार बार विचार करना होगा। इसके लिए हमारा शरीर को डिसिप्लिन देना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, योगासना करना होगा, सूर्य नमस्कार करना होगा, प्राणायाम करना होगा। हमारा जो प्राण वायु जो है उसका आदान प्रदान सही हो, है ना, हमारे अंदर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए,
उसके लिए हमें प्राणायाम करना होगा। क्यों हमारा मन इधर उधर चला जाता है, एक जगह बैठ नहीं पाता है, क्योंकि उसका उस तरह का ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग देना पड़ता। देखिए ना, ये आदमी का अलावा किसी जीवी को ट्रेनिंग होता है? कुत्ता को भौंकने के लिए कोई ट्रेनिंग होता है क्या? नहीं होता है ना। गाय को घास खाने के लिए ट्रेनिंग होता है? नहीं होता है। गाय को देखो, गाय का बछड़ा जो है उसको मालूम है कौन सा घास उसको नहीं खाना चाहिए, उसको मालूम है। एक बतख का जो बच्चा होता है उसको मालूम है मुझे तालाब में मैं गिर सकता हूँ, मगर मुर्गी का बच्चा नहीं गिरता है, उसको मालूम है नहीं गिरना है, गिरने से मर जाएगा, वो नहीं जाएगा। बाई चांस गिरना तो अलग बात है, वो तालाब के बाजू से जाएगा मगर उसमें नहीं कूदेगा, क्योंकि उसको मालूम है। मगर मनुष्य का बच्चा को छोड़ के देखिए, मिलेगा ही नहीं वापस। ट्रेनिंग चाहिए सिर्फ मनुष्य को। तो इसीलिए अभ्यास करवाना है कि ये जो गुस्सा वगैरह जो होना या कंसंट्रेशन नहीं होना, ये सारे के सारा जो है ना, एक सेल्फ डिसिप्लिन से उसका शुरू होता है। उसके लिए पहले शरीर को डिसिप्लिन दीजिए। थोड़ी देर एक जगह शांति से बैठ सकता है क्या? कलुषित मन ना होकर बैठ सकता है क्या? मन को एक जगह पे रख सकता है क्या? नहीं है तो उसके लिए ट्रेनिंग देना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें इस तरह का जीवन का डिसिप्लिन चाहिए। क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे बढ़ता है ना, एक एक्सरसाइज होना पड़ेगा। और ये सारा जो है, ये सब होते हुए उस स्थिति में पहुंचता है कि हम अपना मन को एकाग्र कर पाता है। अगर एकाग्रता आ गया, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, एवरीथिंग विल बिकम पॉसिबल फॉर यू। अगर ऐसा करना है, और ये जो भी कुछ विचलित स्थिति में भी मन को एक जगह रख सकेंगे, नो डाउट अबाउट इट, यू बिलीव मी, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद ने खुद के जीवन में करके हमें दिखाया है। दैट इज वाई स्वामी जी इज हीरो फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम ऐसा बोलने के लिए नहीं है। तो इसीलिए ये जो चाहता है हमारा जीवन का डिसिप्लिन से, एक सिस्टमैटिक बेंड ऑफ माइंड होना पड़ेगा। हमें इस स्थिति में लाने के लिए हमें शुरुआत से ही करना पड़ेगा। इसलिए स्कूल में उसके लिए व्यवस्था बनाया हुआ है। बच्चों को एक्सरसाइजेस है, उनको मेडिटेशन सिखाया जाता है, उनको प्राणायाम दिया जाता है। पर्टिकुलर क्लास में पहुंचने से उनको व्यक्तित्व विकास शिविर किया जाता है, और उनको मालूम होता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सिखाया जाता है वीकेवीओ में। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि वीकेवी नलबाड़ी उसके लिए इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुका है। ऐसा सारा स्कूल करते हैं। तो वीकेवी का जो काम है यही है। तो आप लोग कितना उसमें साथ देंगे, उतना वो जल्दी हम हासिल कर सकेंगे। मगर आखिर ये सब आपके हाथ में है। There are some questions like how to make small children learn self-discipline, etc. सिंपलेस्ट छोटा बच्चा को आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाना पड़ता नहीं है। आप सिर्फ माहौल बना के देना होता है। बच्चा जब छोटा होता है, वो माँ पिता को देखते हुए, उनका बड़ों को देखते हुए अपने आप लाइन में आएगा। आपको कहानी बोलना, आपको घर का माहौल ठीक रखना, बच्चा अपने आप बढ़ेगा। सत्य बोलने के लिए उनको सिखाना नहीं पड़ता है, आप सत्य बोलिए उनके साथ। अगर माँ से गलती हो गई तो माँ बच्चा को बोले बेटा मेरे से गलती हो गया, तो बच्चा को यह समझता है माँ भी गलत होने से उसको कबूल करती है, वो मानती है। तो हमें सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य बोलने का जो है उसके अंदर हिम्मत बचपन से देना है। इसी तरह जो डिसिप्लिन आना है वो बच्चों को माहौल बना के देने से हो गया। आप माहौल बनाना हमारा काम है। तो उसके लिए छोटा बच्चा को डिसिप्लिन कैसा लाए, ये बस इतना ही है। हम अभी जैसे बच्चे गलत बोलते हैं ना, तो हम गलत को बच्चा का जैसे हम भी गलत बोलते हैं बच्चा के साथ, ऐसा नहीं बेटा उस जो शब्द है ना वो ऐसा बोलता है। बच्चा भले ही बोल नहीं सकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको सही बोलो, है ना। कि कुछ बातें बताते हैं, उनका जीभ का ट्रेनिंग नहीं है तो गलत बोलेगा, तो हमने सही बोलना है बार बार, और वो सुनते सुनते वो सही बोलना सीखेगा। हम उसको प्रमोट मत करो। जब भी कभी बच्चा गलत करता है ना, बेड़ा को एक थप्पड़ लगाया, ओ सब मिला के हाथ तालियां बजाने लगता है, तो उसको क्या लगता है बड़ों को मारना चाहिए। तो बड़ों को मारते समय माँ को दुख लगा, अरे बेड़ा को मार दिया, तो नहीं मारते। तो बच्चा को लगता है ओ बड़ों को मारना नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है, तो बोले यो बड़ों को मार दे। माँ ही खुद अगर उसको दुख लगने लगता है तो बच्चा के अंदर विषय चला जाता है कि नहीं करना चाहिए। यानी जो हम उनके अंदर आना है वो हम अपना जीवन में करें, बी एंड मेक। यही स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमको ऐसा बनना चाहिए।
Thank you so much. Should we conclude? Yes, I think we can end the session here. You can move ahead. परस्परम परस्परम भवयन्तः की परिभाषा जितने सुंदर तरीके से राधा दीदी ने दी, इससे ज्यादा सुंदर तरीके से शायद ही मैंने कहीं और सुनी होगी। अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे प्रिंसिपल सर ऋत्विक चक्रवर्ती जी से अनुरोध करूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। Namaskar to everyone. মই মাননীয় ৰাধা দিদি আমাৰ সকলো অভিভাৱক অভিভাৱিকাৰ তৰফৰ পৰা, আমাৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীৰ তৰফৰ পৰা, আমাৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বন্ধু বান্ধৱী, আমাৰ শুভাকাংক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই শলাগ ল'ব বিচাৰিছো। আমাৰ ভাষা নাই কেনেকৈ ৰাধা দিদিক আমি ধন্যবাদ জনাম, কাৰণ ৰাধা দিদি সঁচাই আমাৰ দিদি। আৰু মোৰ আচলতে নিজা বাইদেউ নাই, মই আপোনালোকক আটাইৰে লগত মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিম, কিন্তু দিদিৰ লগত মই যেতিয়া কথা পাতো মোৰ সেইটো অনুভৱ নহয়, মোৰ সদায় নিজৰ আপোন বাইদেউৰ নিচিনা লাগে। তেখেতে যেতিয়াই আমাক উপদেশ দিয়ে, পৰামৰ্শ দিয়ে আমাৰ যিকোনো কামতে, আমি সঁচাই সদায় লাভৱান্বিত হৈ আহিছো। আৰু মই ভাবো যে কেৱল আমাৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ বিদ্যালয় নলবাৰীৰ কাৰণেই নহয়, আমাৰ ৰাধা দিদি, মৰমৰ ৰাধা দিদি, আমাৰ প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ যিটো বিদ্যালয় পৰিবাৰ আছে, প্ৰত্যেকৰ কাৰণেই তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰে। আৰু আমি সদায় তেখেতৰ পৰা সুপৰামৰ্শ, সুদিহা পৰামৰ্শ আমি পাই আহি আছো। আৰু তেখেত আমাৰ কাৰণে সদায় এটা কেতিয়াও কম নোহোৱা এটা প্ৰেৰণা স্ৰোত। তেখেতৰ পৰা আমি যি প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু তেখেতৰ যিটো অভিজ্ঞতা পুষ্ট তেখেতৰ যিটো জীৱন, এই জীৱনৰ পৰা আহৰণ কৰা তেখেতৰ যি জ্ঞান, তাৰ পৰা তেখেতে আমাক যিটো সুপৰামৰ্শ দিয়ে, তাৰ পৰা আমাৰ লাভটো হয়েই। তাৰ লগে লগে আমি কেনেকৈনো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ মাজেৰে তাৰ যিটো পজিটিভ সাইড, যিটো ইতিবাচক দিশ, সেইখিনি লৈ আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰো। আজিৰ এই সেশনতো, এই যিটো আমাৰ মিটিং হল সভা, এইখিনি আমি নিশ্চয় বুজি পাইছো আটাইয়ে। আৰু মইতো কওঁ যে আধা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা দিদিৰ কাৰণে একোৱেই নহয়। আমি যদি 4-5 ঘন্টাও বহি কথা পাতো দিদিৰ লগত, কথা কেতিয়াও শেষ নহব। আৰু এনে ধৰণৰ বহুতো জ্ঞান গৰ্ভ কথা দিদিৰ পৰা আমি শুনিয়ে থাকিব পাৰিম। আৰু মই আপোনালোকক আৰু জনাব বিচাৰিছো, দিদিয়ে সময় পালে কিজানি আমাক আৰু কেইটামান কাহিনী ক'লেহেঁতেন, কাৰণ দিদি হৈছে কাহিনীৰ ভঁৰাল। ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ সাধু কথা কাহিনী দিদিয়ে জানে, আৰু সেই কাহিনী বিলাকে সদায় আমাক কিছুমান নীতি কথা শিকায়, কিছুমান চাৰিত্ৰিক দিশ যিবিলাকত আমাৰ কিবা কেৰণ লাগি থাকে, সেইখিনি যাতে আমি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰো, সেই বিষয়ে আমি সদায় দিদিৰ পৰা আমি পৰামৰ্শ পাওঁ। গতিকে আজিৰ এই 1.5 ঘন্টাৰ যিটো সেশন সভা, এই সভাখনত যিখিনি অভিভাৱক অভিভাৱিকা আজি উপস্থিত থাকি নিজৰ নিজৰ প্ৰশ্ন কৰি আৰু তেখেতসকলে আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে, আৰু তেখেতসকলে যিটো পাইছে আজি এই সভাখনত, আমি নিশ্চিত যে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বিলাই দিব পাৰিব এই জ্ঞান, আৰু নিজৰ জীৱনতো তাৰ তেওঁলোকে পালন কৰিব পাৰিব। আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও যিসকলে আমি এই সভাখন আজি উপস্থিত থাকিলো, আমিও বহুতো প্ৰেৰণা পাইছো। আমিও কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, কৰণীয় আমাৰ কি হব, এই সম্পৰ্কে আমি যথেষ্ট জ্ঞান আমি পাইছো। আমাক এতিয়া লাগে আমি কেনেকৈনো কাৰ্যক্ষেত্ৰত তাক আমি পালন কৰিব পাৰিম, সেইখিনিহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু বিশেষকৈ মই আজি আমাৰ মাতৃসকলক, যিসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ইমান সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰিলে, তেখেতসকলক মই
ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে ভাষা নাই। আমাৰ শশী জৈন বাইদেউ তেখেতে সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰিলে, তেখেতে এংকৰিং কৰিলে। তাৰপিছত জুনুমণি হালৈ বাইদেউ তেখেতে মংগলাচৰণ কৰিছিলে। আমাৰ ৰচিতা নায়ক বাইদেউ তেখেতে আমাৰ দিদিৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিলে আৰু আমাৰ সকলোকে তেখেতে অভ্যৰ্থনা আদৰণি জনাইছে। তাৰপিছতে আমাৰ সবিতা বৰ্মন বাইদেউ তেখেতে এটা সুন্দৰ লোকগীত পৰিবেশন কৰিলে। অলপ ইণ্টাৰনেটৰ দিগদাৰি হৈছিলে, তথাপি আমি শুনিছো। ইমান সুন্দৰ বাদ্যযন্ত্ৰীসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছো, আপোনালোকে আহি ইমান সুন্দৰকৈ পৰিবেশন কৰিলে। আমাৰ খুব ভাল লাগিছে আচলতে। আজি এইটো কথা আমি আপোনালোকক খুব আন্তৰিকতাৰে আমি জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ আটাইৰে উপস্থিতিত প্ৰায় 150 মানুহ আজি উপস্থিত আছিলে। আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আমাক খুব অনুপ্ৰেৰণা দিছে আৰু মই ভাবিছো যে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠান সফল হৈছে, আৰু বেছি সফল হ'ব যদি আমি আজি জানিবলৈ পোৱা যিখিনি কথা আমি যদি কাৰ্যক্ষেত্ৰত সেইখিনি কৰিব পাৰো, পালন যদি কৰিব পাৰো, আমি নিশ্চয় আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম। আৰু শেষত পুনৰবাৰ মই ৰাধা দিদিকটো ধন্যবাদ জনাইছোৱে, তাৰ লগতে সমূহ অভিভাৱক আৰু অভিভাৱিকা আটাইকে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বন্ধু বান্ধৱী শুভাকাংক্ষী আটাইলৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু শুভৰাত্ৰি। আমাৰ বোধকৰো এতিয়া শান্তি মন্ত্ৰ হ'ব। धन्यवाद सर। सर ऐसे सेशन की हमें आप और अरेंजमेंट करेंगे, इसकी बहुत उम्मीद है आपसे, क्योंकि इस तरह का सेशन शायद हम पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत मोटिवेशनल सेशन है, क्योंकि हमें भी बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे मोटिवेशनल सेशन की, बच्चों से ज्यादा। और शायद पेरेंट्स मोटिवेट होंगे तो बच्चे डेफिनेटली मोटिवेट होंगे। तो सर आपसे बहुत गुजारिश है कि कभी अगर मौका मिले तो राधा दीदी प्लीज नलबाड़ी आइए, हम आपके साथ जरूर एक ऑफलाइन सेशन करना चाहेंगे। ये हमारे लिए बहुत 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 सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि बच्चों से ज्यादा हम पेरेंट्स को आपकी जरूरत है। और सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं इस सेशन को एक संचालिका के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू सो मच दीदी। अब हम अंत की ओर अग्रसर होते हैं और शांति पाठ के लिए तैयार होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि और यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राधा दीदी। सर प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि राधा दीदी को प्लीज एक बार नलबाड़ी ऑफलाइन सेशन के लिए बुलाइए। दीदी को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, शुभ रात्रि, नमस्ते। शुभ रात्रि, नमस्ते। थैंक यू सो मच।